In the name of Allah, the most beneficent, the dispenser of grace. Today, we are going to discuss chapter number 1, computer science and grade 9. Last time we have discussed our topic number 1.17, which were the advancements in 1950s and 1960s. And today we will discuss next topic, that is 1.18, more recent advancements. So let's get started. The trend during the 1970s was moving away from very powerful single-purpose computers towards a larger range of applications for cheaper computer systems. 1970s की ट्रेंड के दौरान ये बहुत पावरफुल सिंगल पर्पस था कि कंप्यूटर्स जो थे वो लार्जर रेंज ऑफ एप्लीकेशन से चीपर कंप्यूटर सिस्टम्स की तरफ जा रहे थे. न्यू एप्लीकेशंस वर डिजाइंड, नए एप्लीकेशंस डिजाइन किए जा रहे थे एंड मेड अवेलेबल फॉर कंट्रोलिंग अ ग्रेट रेंज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, और उनको अवेलेबल बनाया जा रहा था कि बहुत से ग्रेट रेंज ऑफ एप्लीकेशन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस अवेलेबल हो सकें. मोरओवर, इसके साथ साथ अ न्यू रेवोल्यूशन इन कंप्यूटर हार्डवेयर वाज अंडर द वे, और जो कंप्यूटर हार्डवेयर था उसके अंदर न्यू रेवोल्यूशन, एक नई रेवोल्यूशन आ रही थी, which allowed the size of the computers to be reduced, जो कंप्यूटर के साइज को कम से कम कर रही थी या छोटा कर रही थी. In 1980s, 1980 के दौरान a very large scale integration VLSI, in which hundreds of thousands of transistors were placed on a single chip. 1980s के अंदर very large scale integration हुई जिसके अंदर hundreds of thousands of transistors जो थे वो एक single chip के ऊपर place किए जाने लगे and become more and more common, और ये ज्यादा से ज्यादा कॉमन होता गया. The trend continued, और ये ट्रेंड जो था ये कंटिन्यू रहा, ये चलता गया and led to the introduction of personal computers, और इसके साथ साथ जो पर्सनल कंप्यूटर्स थे वो बनना स्टार्ट हो गए थे, और यही इंट्रोडक्शन था पर्सनल कंप्यूटर्स का, जिनको पीसीज भी कहा जाता है, which are smaller in size, जो कि साइज में छोटे थे, inexpensive, जो सस्ते थे, and used by individuals, और जो आम लोग या individuals जो थे इस्तेमाल कर सकते थे. Many companies introduced very successful pieces in 1970s. बहुत सी कंपनीज ने 1970 के अंदर बहुत से सक्सेसफुल पीसेस जो थे वो इंट्रोड्यूस करवाए. In the manufacturing of computer processor chips, computer processor chips की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान the Intel and Motorola corporations were very competitive in 1980s. 1980 के अंदर मेट्रोला और इंटेल के जो प्रोसेसर चिप्स थे वो बहुत ज्यादा कंपटीशन में थे. In early 1980s के स्टार्ट में, however, the Japanese government announced a big plan to design and build a new generation of computers. Japanese government ने एक बहुत बड़ा प्लान इंट्रोड्यूस करवाया न्यू जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स की, नई कंप्यूटर्स की जनरेशन के लिए और उनके डिजाइन के लिए. This new generation, the so-called fifth generation, ये जो न्यू जनरेशन थी इसको फिफ्थ जनरेशन भी कहा गया, and is using the new technologies and will be capable of amazing features as artificial intelligence. और इस फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स के अंदर बहुत सी न्यू टेक्नोलॉजीज जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई गई, फीचर्स इंट्रोड्यूस करवाए गए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI की टेक्नोलॉजी भी इंट्रोड्यूस करवाई गई. The cost of computers is rapidly lessening. जो कीमत थी कंप्यूटर्स की वो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमी आ रही थी, and their convenience and efficiency are expected, और उनमें जो convenience थी, आसानी थी, और उनकी जो efficiency थी वो day by day as expected increase हो रही थी in the early future, जो कि future के अंदर increase हो जानी थी. The computer field continues to experience huge growth, और जो कंप्यूटर की फील्ड थी वो एक्सपीरियंस कर रही थी बहुत ज़्यादा ग्रोथ day by day. Computer networking, electronic mail, and electronic publishing are just a few of the applications that have grown in the recent years. Recent years के अंदर computer networking, electronic mail जिसे हम email कहते हैं, और electronic publishing जो थी वो बहुत सी applications जो थी वो recent years के अंदर grow up हो रही थी. Advances in technologies continue to produce cheaper and more powerful computers. जो advancements थी टेक्नोलॉजी के अंदर
उसकी मदद से ज़्यादा सस्ते कंप्यूटर्स और ज़्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स जो थे वो जनरेट हो रहे थे। एंड नाउ कंप्यूटर्स आर प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ द ऑफिसेज, होम्स एंड स्कूल्स। और अब ज़्यादातर कंप्यूटर्स जो हैं वो घरों के अंदर, वो दफातर के अंदर और स्कूलों के अंदर आने लग पड़े हैं। Okay, our next topic is 1.2 computer generations. Here we will discuss the different computer generations. And the first computer generation is 1.2.1, first generation, that are called the vacuum tubes. Here we can see the picture of the vacuum tube also. Computers of this generation used vacuum tubes. इस generation के जो computers थे, first generation के जो computers थे, वो vacuum tubes को use करते थे to perform calculations, ताकि वो calculations सर अंजाम दे सकें। वैक्यूम ट्यूब्स वर एक्सपेंसिव, लेकिन वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो महंगे थे बिकॉज ऑफ द अमाउंट ऑफ द मटेरियल एंड द स्किल नीडेड टू मैन्युफैक्चर देम। बिकॉज जो स्किल नीडेड थी और जो मटेरियल नीडेड था वैक्यूम ट्यूब्स को ऑपरेट करने के लिए और बनाने के लिए, वो ज़्यादा महंगा था। वैक्यूम ट्यूब्स गो गेट हॉट एंड बर्न आउट। वैक्यूम ट्यूब्स गर्म हो जाते थे और जल्द ही जल जाते थे। कंप्यूटर्स ऑफ दिस जनरेशन वर वेरी लार्ज मशीन्स। इस जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे वो बहुत बड़ी मशीन्स पर मुश्तमिल थे। स्पेशल रूम्स विद एयर कंडीशनिंग वर नीडेड टू हाउस देम बिकॉज ऑफ द हीट जनरेटेड बाय द वैक्यूम ट्यूब्स। स्पेशल किस्म के कमरों जिनको यूज किया जाता था, जिसके अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स लगे होते थे कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स जो थे वो हीट जनरेट करते थे और वो जल जाते थे। इसलिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर्स वर ENIAC एंड UNIVAC1। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंप्यूटर सिस्टम से तब ये दो थे, जिसके अंदर एक कंप्यूटर है हमारा ENIAC, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, एंड द सेकंड वन इज द UNIVAC, दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इन दो को हम डिस्कस यहाँ करेंगे। It was the first general purpose electronic digital computer designed by John William Mackay and John Eckert in 1942. दो साइंटिस्ट थे जिसमें विलियम मैके था और जॉन एक्रेक्ट था। उन्होंने 1942 के अंदर ENIAC डेवलप किया। It might be your MCQ, a short question, it's very important. The ENIAC was very large and large size. ये बहुत बड़ी बहुत हैवी मशीन थी और लार्ज साइज मशीन थी, and it consumes about 140 kilowatts of power and was capable of doing 5,000 additions per second. 140 किलोवाट्स की पावर ये यूटिलाइज करती थी और 5,000 एडिशन के कैलकुलेशंस ये एक सेकंड के अंदर कर सकती थी। ओके, ENIAC was a decimal rather than a binary machine. ये एक डेसिमल मशीन थी, ना कि बाइनरी मशीन थी। बाइनरी मशीन that operates on 0 1, that is numbers were represented in a decimal form and arithmetic was performed in a decimal system. इसके अंदर जो नंबर्स थे वो डेसिमल फॉर्म में प्रेजेंट किए जाते थे, ना कि और जो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस थी वो इसकी भी डेसिमल सिस्टम्स के अंदर ऑपरेट होती थी। The major drawbacks of ENIAC was that it had programmed manually by setting switches and plugging and unplugging cables. लेकिन जो मेजर ड्रॉबैक था ENIAC का वो ये था कि इसको मैनुअली प्रोग्राम किया जाता था स्विचेस के साथ, स्विचेस की सेटिंग के साथ, और प्लगिंग और अनप्लगिंग केबल्स करके इसको ऑपरेट किया जाता था। एंड दैट वाज द मेजर ड्रॉबैक ऑफ दिस ENIAC फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। Okay, our second computer in first generation computers is UNIVAC, that is the Universal Automatic Computer. In 1947, Eckert and Micheley formed Eckert-Micheley Computer Corporations to manufacture computer commercially. 1947 के अंदर दो साइंटिस्ट ने एक कंप्यूटर कॉर्पोरेशन को इंट्रोड्यूस किया जो कि कंप्यूटर्स कमर्शियली स्केल पे बनाना स्टार्ट कर दिया था। Their first successful machine was UNIVAC. उनकी पहली जो सक्सेसफुल मशीन थी, कामयाब मशीन थी, वो UNIVAC ही थी, which was delivered to US Bureau, जो कि US ब्यूरो को डिलीवर की गई for the census purpose, पॉपुलेशन की काउंटिंग के लिए 1951 के अंदर। It was actually the first computer developed by for commercial use, और ये पहला कंप्यूटर था जो कि कमर्शियल यूज के लिए, लाइक शॉप्स के लिए, मार्केट्स के लिए, बैंक्स के लिए इस्तेमाल किया जाना शुरू हुआ। It was intended for both scientific and commercial applications. ये दोनों साइंटिफिक और कमर्शियल एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। That's all for the day. If you have any questions or queries, you may ask in the comment section below.
And if you like this video, please like, subscribe, and share my channel. Thank you so much. Stay tuned.